So today we are going to discuss the characteristics of Renaissance. In our last class we discussed reasons behind the emergence of Renaissance and now the characteristics of Renaissance. So the very first thing related to the characteristics of Renaissance is rebirth or revival of learning. Rebirth or revival of learning is same as we discussed in the last class, that the classical Greek and Roman manuscripts were discovered, they were translated, and they were looked at again by different writers, most importantly by Petrarch and others like Boccaccio, and it led to the emergence of Renaissance. The next thing, love of discovery is an important characteristic of Renaissance, and you will find this characteristic in several plays, mostly Shakespeare and Christopher Marlowe. If you remember Dr. Faustus, तो वहाँ पे आप देखेंगे Dr. Faustus want to move from one place to another place. He goes here and there, and in Shakespeare's Tempest, it is a comedy by Shakespeare, and in Tempest you will see two things. One is discovery, and secondly is colonialism. कि उस जमाने में आप देखेंगे colonialism start हो रही थी. As colonialism started, as we discussed in our last class, that Columbus discovered America and it has an effect on the Renaissance and the literature of Renaissance. And as a result, Shakespeare also wrote a play Tempest. उसमें आप देखेंगे that there is a character who is white and he is the representative of colonialism. He moves to some island, captures that and becomes the lord of that land. So उसमें आप देख सकते हैं टेम्पेस्ट के अंदर. इसी तरह बहुत सारे प्लेज शेक्सपियर के जो हैं उसके अंदर आप लव ऑफ डिस्कवरी जो है आपको नजर आता है. Another important thing is love of beauty or love for beauty, and this beauty can be the beauty of culture and the beauty of human nature or the beauty of women, all of these. For example, if you look at Dr. Faustus, and very important lines when he asks Mephistopheles to show him the most beautiful woman of the world, and Mephistopheles brings Helen, and he says, Dr. Faustus, when he looks at Helen, that was this the face that lined 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium. Sweet Helen, make me immortal with a kiss. So this is related to the love of ब्यूटी. इसी तरह आप शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज जो हैं उसके अंदर लव ऑफ ब्यूटी आपको नजर आएगा, लाइक रोमियो एंड जूलियट. इट इज अ वंडरफुल प्ले बाय शेक्सपियर, एंड I would suggest, yes, all of you to do read Romeo and Juliet at least. Yes, Antony and Cleopatra is again a wonderful play, and love के हवाले से आप जो सेक्रीफाइस और जो लवर्स एक दूसरे के लिए मर जाते हैं उसमें ये दो प्लेस बहुत फेमस है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड रोमियो एंड जूलियट. दे सेक्रीफाइस देमसेल्व्स फॉर ईच अदर. इसी तरह एज यू लाइक इट में आपको ये चीज बहुत ज्यादा नजर आती है. आप में से वो लोग जो एमफिल कर रहे हैं तो आप लोगों ने शायद शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और कॉमेडी को पढ़ा हो, तो उसमें भी आप ये चीज देख सकते हैं. इसी तरह
बाकी उसके जो प्लेज हैं उनके अंदर ये चीज मौजूद है। इसीलिए शेक्सपियर की कॉमेडी को कहा जाता है रोमांटिक कॉमेडी। ये चीज ध्यान में रखें, इसको जैसे हम आगे आएंगे डिस्कस भी करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉमेडीज दैट आर वेरी फेमस। एक है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, second is romantic comedy, third is comedy of manners, and fourth is comedy of ideas. ये 4 टाइप्स कॉमेडीज की बहुत ज्यादा फेमस हैं एंड शेक्सपियर इज फेमस फॉर द रोमांटिक कॉमेडी। इसको हम जब बेन जॉनसन को डिस्कस करेंगे उसमें भी देखेंगे, बट सिंपली कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज टेकन फ्रॉम ग्रीक मेडिसिन। और उस वक्त की जो ग्रीक की मेडिसिन की थ्योरी थी उसमें यह बिलीव किया जाता था दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मेड अप ऑफ 4 ह्यूमर्स। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो 4 ह्यूमर्स की बनी हुई होती है। And 4 humors are black bile, yellow bile, and sanguine and hypochondriac। ये 4 उसके अंदर आप देखेंगे, उसके 3-4 नाम हैं, हर एक के 2-2 नाम हैं जो इसके अंदर। तो वो कहा जाता था कि अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो 4 ह्यूमर्स जो हैं अगर वो अपनी प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये चारों ह्यूमर्स जो हैं अगर अपनी प्रॉपर प्रोपोर्शन में 25-25-25, देन योर पर्सनैलिटी विल बी बैलेंस्ड। इफ these humors are not in their proper proportions, your personality will be imbalanced। फॉर एग्जाम्पल ये 20 हो जाता है तो ये 30 हो जाएगा, अगर ये 40 होता है तो ये 10 हो जाएगा। मीन्स कि आपकी पर्सनैलिटी क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस्ड हो जाएगी। And this is taken from the theory of Galen. Galen and Hippocrates. These are 2 doctors from Greek civilization। और इसके अंदर आप देखेंगे कि इवन आज तक भी जो डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, ओथ को क्या कहा जाता है, अहद वो करते हैं, हल्फ लेते हैं, वो आज भी इसी का लिखा हुआ है, हिपोक्रेटिस का है एंड गैलन। दैट इज व्हाई इट इज सेड दे वर द फर्स्ट डॉक्टर्स हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मेडिसिन। तो उनके नजदीक ह्यूमन पर्सनालिटी इज कंपोज्ड अप ऑफ 4 ह्यूमर्स एंड व्हेन दीज 4 ह्यूमर्स आर इन देयर प्रॉपर प्रोपोर्शंस योर पर्सनालिटी विल बी बैलेंस्ड एंड व्हेन दीज humors are not in their proper proportions your personality would be imbalanced। most of the times लोग इस लफ्ज को जब देखते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स तो कहते हैं जिस कॉमेडी में गपशप होगी तो उसको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहा जाता है। इवन पीपल टीच दिस इन द क्लास एज वेल एंड पीपल हैव अटेम्प्टेड द पेपर्स एंड दे हैव स्कोर्ड 80% मार्क्स without knowing that what is the meaning of the humors and what is the background of that। so keep this thing in mind, humors means that 4 fluids in the body, वो fluids properly flow हो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी जो होगी वो बैलेंस्ड होगी, आपकी साइकोलॉजी बैलेंस्ड होगी, आपका माइंड बैलेंस्ड होगा, आपकी हेल्थ बैलेंस्ड होगी। और अगर ये चीजें प्रॉपर नहीं होंगी तो इट वुड लीड टू इम्बैलेंस। रोमांटिक कॉमेडी इज शेक्सपियरियन कॉमेडी। इसके अंदर आप देखेंगे मोस्टली नहीं उसके साथ ताल्लुक नहीं, इट इज वेरी डिफरेंट। तो रोमांटिक कॉमेडी के अंदर आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर लव रिलेशनशिप्स, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट। रोमांटिक कॉमेडी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, देयर आर लव रिलेशनशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, जर्नी टू द अंडरवर्ल्ड एंड एट द एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। आ जाए, एट द एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। आखिर में उस फैन को ऑन कर दें, टर्न ऑन दैट फैन। तो ये शेक्सपियरियन रोमांटिक कॉमेडी है।
देन कॉमेडी ऑफ मैनर्स, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा इसको, द राइवल्स ड्रामा आपकी कोर्स में शामिल होगा, वो बीएस में भी है, मास्टर्स में भी है। द राइवल्स बाय रिचर्ड ब्रेंसले शेरिडान, पढ़ा है? मतलब मसला यह है कि हम भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं ना। तो उसके अंदर कि मोस्टली जो लोगों के मैनर्स होते हैं उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, हाउ टू डील विद द पीपल, देयर मैनर्स, देयर बिहेवियर्स, देयर एटिकेट्स, उन सबको जब टारगेट किया जाता है, उनके ऊपर मजाक बनाया जाता है, दैट इज नोन एज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ आइडियाज जो है, इट इज फेमस एंड the person who wrote Comedy of Ideas is G.B. Shah. G.B. Shah की जो कॉमेडी है, it is the comedy of ideas. अगर आप लोगों ने आर्म्स एंड द मैन पढ़ा हो, या आप लोगों ने पिग्मेलियन पढ़ा हो, या कोई और ड्रामा G.B. Shah का पढ़ा हो, that is known as the comedy of ideas. यहां पे बात किस चीज पे होती है? आइडियाज के ऊपर बात हो रही होगी कि आइडियाज का मजाक उड़ाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द प्लेज ऑफ G.B. शाह, उसमें आपको नजर आएगा दैट ही मेक्स फन ऑफ द आइडियाज रिलेटेड टू द हीरोज। उसमें आप देखेंगे कि एक हीरो होता है, आर्मी ऑफिसर होता है, वो जंग लड़ने के लिए जाता है। तो जंग लड़ने के लिए जब वो जाता है तो सामने से जो उसके अपोजिट मुल्क होता है, उसकी फौज होती है, उन्होंने सामने गन्स लगाई होती हैं और वो ऊपर बैठे होते हैं या नीचे होते हैं और ये उनके सामने से उनके ऊपर हमला करता है। इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मिलिट्री, तो ये एक स्टूपिड मिस्टेक थी कि आपके सामने गन्स हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं और आप सामने से उनके ऊपर हमला कर रहे हैं नीचे से। इट वाज अ मिस्टेक, इट वाज स्टूपिडिटी। लेकिन वो बंदा जंग जीत जाता है। वो किस तरह जंग जीत जाता है कि वो जो ऊपर बैठे होते हैं गन्स लगा के, उनकी गन्स के अंदर बुलेट्स नहीं होती। सो G.B. Shah says that the soldiers and the people who work in the army, they are mostly stupid. And इसके अलावा वहां पे क्लास डिफरेंसेस की बात है। G.B. शाह जो है वो उसके ऊपर फोकस करता है, क्लास डिफरेंसेस के ऊपर। इसके अलावा वो बहुत और आइडियाज जो हैं उनके ऊपर फोकस करता है। तो ज्यादातर हीरोइक आइडियाज और लोगों के क्लास के साथ जो हीरोइक आइडियाज हैं कि अपर क्लास मस्ट मैरी इन द अपर क्लास, लोअर क्लास मस्ट मैरी इन द लोअर क्लास, मिडिल क्लास मस्ट मैरी इन द मिडिल क्लास। तो G.B. शाह इस चीज का भी उसमें मजाक उड़ाता है, दैट मैरिज इज नॉट द मैरिज ऑफ द क्लासेस, मैरिज इज द मैरिज ऑफ माइंड्स, मैरिज इज द नॉट द मैरिज ऑफ द बॉडीज, रादर मैरिज इज द मैरिज ऑफ द माइंड्स। व्हेन योर माइंड्स आर अलाइक, you may belong to upper class, middle class or lower class. When your minds are alike, you like each other. Love does not listen to the artificial barriers of class, caste, color, creed and so on and so forth. तो उसमें आप देखेंगे G.B. शाह के प्लेज में, इसलिए शेक्सपियर की बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है that love is the marriage of minds. Love is the and marriage must be the marriage of minds. ये चीज ध्यान में रखें। आप इसको अपनी सोसाइटी पे अप्लाई कर सकते हैं कि हम मैरिज को क्या कंसिडर करते हैं कि ये हमारे ऊपर एक मुसीबत है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, आपने उसको किसी तरीके से जो है वो शादी करवानी है एंड आप ढूंढ रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ जो मैरिजेस हैं, these are the marriages of class, these are the marriages of bodies, and these are not the marriages of the minds. That is why it is said that marriage must be the marriage of mind, where two people understand each other, like each other, interact with each other, and then they go and they decide, और उसके बाद आगे के फैसले होते हैं। So G.B. Shah criticizes that marriage of the classes. उस ड्रामा के अंदर आप देखेंगे कि जो अपर क्लास के दो लोग हैं उनकी आपस में शादी हो रही है, जो लोअर क्लास के लोग हैं उनकी हो रही है। लेकिन वो वहां पे बताता है कि जो लोअर क्लास की लड़की है उसको लव होता है अपर क्लास के लड़के के साथ, और जो अपर क्लास का लड़का है उसको लोअर क्लास की लड़की के साथ लव हो जाता है। तो इसका मतलब है लव डू नॉट लुक एट द बैरियर्स दैट आर क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, दीज आर आर्टिफिशियल बैरियर्स। लव ऑल्सो लव ऑलवेज लुक्स एट
the marriage of the minds rather than the marriage of the bodies. So G.B. Shah criticizes that. So love for beauty is an important factor in Renaissance, and it is one of the important characteristics of Renaissance. Another thing, great chain of being. Great chain of being was a concept in Renaissance period. उसमें सबसे पहली बात ये थी कि रेनेसांस से पहले बर्तानिया जो था वो होली रोमन एम्पायर के अंडर आता था, और जो फैसला पोप करता था वही फैसला इनको मानना पड़ता था। लेकिन उसके बाद हेनरी द 8th जब आता है तो वो कहता है कि हम इंग्लैंड का अपना चर्च बनाएंगे, हम उस चर्च के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थी डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान। तो ये इनको लगता था कि पोप जो है वो किसी एक कंट्री की फेवर कर रहा होता है। सो इंग्लैंड मेड इट्स ओन और इंस्टीट्यूटेड इट्स ओन चर्च, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें उन्होंने अपनी एक चेन ऑफ बीइंग बनाई। चेन ऑफ बीइंग, बीइंग कहते हैं क्रीचर्स को, और चेन ऑफ बीइंग क्या है कि बीइंग्स जो हैं, सबसे ऊपर बीइंग जो है वो खुदा है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किंग या क्वीन है, उसको कहा जाता था द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, किंग या क्वीन। दैट इन दैट चेन ऑफ बीइंग्स सबसे पहले बीइंग जो आता है इट इज गॉड, उस चेन में दूसरे नंबर पे किंग या क्वीन आती है, उसके बाद जो है वो आपके मिनिस्टर्स आते हैं, हुकूमत को चलाने वाले आते हैं, उसके बाद आपके प्रीस्ट वगैरह आते हैं। तो इससे पहले क्या था कि सबसे ऊपर गॉड था और उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, प्रीस्ट थे। तो अब यहां पे जब चर्च ऑफ इंग्लैंड बनता है तो सबसे ऊपर गॉड है, दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है, किंग और द क्वीन, द शैडोज ऑफ गॉड ऑन अर्थ, इसको कहा जाता है किंग और क्वीन को। और बाकी जो लोग थे वो उसके नीचे आ जाते हैं, इवन जो रिलीजियस और क्लर्जी क्लास होती है वो उनके नीचे आ जाते हैं। सो उसके बाद क्या आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, आर्टिजन्स आते हैं, लेबरर्स आते हैं, इवन उसके बाद ये फ्लोरा और फाना की तरफ जाते हैं। फ्लोरा और फाना कहा जाता है, किस चीज को कहा जाता है, दरख्त और जानवर, फ्लोरा एंड फाना। और तो उसके बाद वो कहते हैं कि जानवर आ जाते हैं, उसके बाद आपके दरख्त और इवन इंसेक्ट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है कि इंसेक्ट्स का उसके अंदर क्या नंबर है। तो इसको कहा जाता है ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। और उस जमाने में यह कहा जाता था अगर आप इस ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को फॉलो करते हैं तो आपकी सोसाइटी ठीक रहती है, अगर आप इस ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को फॉलो नहीं करते तो आपकी सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी वाज़ेह एग्जांपल आपको नजर आती है मैकबेथ के अंदर। फॉर एग्जांपल मैकबेथ में देखेंगे सबसे ऊपर कौन है, गॉड है, दूसरे नंबर पे उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, किंग डंकन, उसके बाद जनरल्स हैं, उसके बाद बाकी लोग हैं। अब जब डंकन अलाइव था, सारे लोग अपने एरियाज में, अपनी लिमिट्स में काम कर रहे थे, तो वो जो मुल्क था वो सही चल रहा था, ठीक है। और जैसे मैकबेथ डंकन को किल करता है, डंकन को जैसे मारा जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वो चेन ऑफ बीइंग क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। कि पहले उस चेन में कौन था, डंकन था, उसके बाद मैकबेथ था, लेकिन अब उस चेन में क्या हो गया कि जो नीचे वाला था ऊपर आ गया और ऊपर वाला जो है वो खत्म हो गया, उसको कत्ल कर दिया गया। मींस द चेन ऑफ बीइंग इज डिस्टर्ब। तो उसके बाद आप उस मुल्क की हालत देखें जहां पे मैकबेथ ड्रामा सेट है, एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट, और वहां पे कोई पावर नहीं होती जो चीजों को इकट्ठा कर सके। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर के ड्रामा के अंदर आपको ये ग्रेट चेन ऑफ बीइंग जो है वो नजर आती है कि अगर ग्रेट चेन ऑफ बीइंग जब इंटैक्ट थी, वो वैसे ही थी जैसे कि फिलॉसफी में मौजूद है, तो फिर सब कुछ उस ड्रामा के अंदर ठीक होता है, उस मुल्क के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर ठीक होता है। लेकिन जब उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। सो दिस इज नोन एज ग्रेट चेन ऑफ बीइंग।
The next thing is love for knowledge. And you will find this in Dr. Faustus. कहाँ पे आपको नजर आता है? डॉक्टर फास्टस तो आप सबने पढ़ा हुआ होगा. Okay. So if you look at, you are right. Thank you. Look at Dr. Faustus. There is love of knowledge in Dr. Faustus, and Faustus was learned in few subjects like logic, theology, law, and divinity. These were the 4 subjects. So it shows Renaissance love for knowledge, divinity, law, logic, and theology. Divinity, law, logic, and theology. So he was very much learned, and yes, another thing, physics. फिजिक्स यहाँ पे मतलब है मेडिसिन, जो बीमारियों का इलाज करते हैं. और डॉक्टर फास्टस मशहूर था कि उसने बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी दरियाफ्त किया था. सो इट वाज लव ऑफ नॉलेज, लव ऑफ लर्निंग दैट फास्टस हैड. और इवन आप उसकी जो क्वेस्ट है फॉर नेक्रोमेंसी, आप उसको लव ऑफ नॉलेज कह सकते हैं कि वो एक नई नॉलेज हासिल करना चाहता है जिसके जरिए वो बहुत सारे काम करना चाहता है. इसीलिए ही डिमांड्स 24 years. तो इस ये भी कहा जाता है कि इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग 24,000 years और 30 years और 50 years, तो वो क्यों मांगता है कि मुझे 24 years दिए जाएं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जो है नॉलेज की बुनियाद पर जो है वो भी इन क्रिश्चियनिटी 6 is the figure of Saturn, 7 is the figure of Jesus Christ. So as it is one of the interpretation कि जब वो डेवल के साथ पैक्ट कर रहा था, तो that is why he demanded 24 years. 2 and 4 will make 6. तो 6 किसका फिगर है? डेवल का फिगर है. तो वो इसलिए 6 की तरफ वो जा रहा होता है. That is why he demands. Even ये भी कहा जाता है कि 24 इसलिए है कि हमारी लाइफ जो है वो 24 आवर्स की है, क्योंकि हर आने वाला दिन कितने घंटों का है? 24 आवर्स का. तो आपकी जिंदगी चाहे 24 साल है, 2400 साल है, 24,000 साल है, लेकिन हम उसको कंसिडर क्या करते हैं कि आपका हर दिन 24 आवर्स का, आपकी जिंदगी एक ही दिन की है. तो इसीलिए आप इसको इस हवाले से भी देख सकते हैं. सो यू कैन फाइंड दिस लव ऑफ नॉलेज in Dr. Faustus, and as you have suggested, you can find this love of knowledge in Bacon as well. इसीलिए उसको कहा जाता है Bacon as a child of Renaissance. तो उसमें भी उसके जो एसेज हैं, लाइक आप स्टडीज अगर पढ़ें, उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कॉन्फ्रेंस मेक रेडी मैन, राइटिंग एग्जैक्ट मैन, एंड रीडिंग अ फुल मैन. ठीक है, तो ये उसकी नॉलेज से रिलेटेड है. रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. कॉन्फ्रेंस का मतलब है स्पीकिंग, जब आप बोल रहे होते हैं. सो देन वी कम टू love of power, and we find this love of power in Macbeth. Macbeth किस लिए ये सब कुछ कर रहा होता है? For the sake of power, and in order to become king of Scotland. So in order to gain that power, he adopts both fair and foul methods. That is why आप शुरू में पहले इसमें देखेंगे कि witches क्या कहती हैं? Fair is foul and foul is fair. So he adopts both foul means as well as fair means. और उसके अलावा ये कहा जाता है कि Macbeth is himself not responsible for these killings that he
kills Duncan and Banquo and other characters and Macduff and his children and his wife. Macduff तो बच जाता है, उसको मारने के लिए वो भेजता है. तो ये कहा जाता है कि it was witches' prophecy that is responsible for the deterioration of Macbeth. लेकिन उसके अगेंस्ट क्या ओपिनियन होता है कि जब मैकबेथ जा रहा होता है विचेस के सामने से गुजर के, वो अकेला नहीं होता, उसके साथ बैंको भी होता है. बैंको आल्सो लिसन्स टू दैट प्रोफेसी ऑफ द विचेस. लेकिन वो क्या कहता है, टू मी दीज एरी थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. बैंको कहता है मैं इनकी सुनता भी नहीं हूं. लेकिन मैकबेथ जैसे ही विचेस की बात सुनता है तो वो उसको अपने दिमाग में बिठा लेता है और वो कहता है मैंने ये करना है. सो हियर यू कैन से that it was not the prophecy of the witches that is responsible for Macbeth's deterioration, rather it was Macbeth's own desire. फिर कहा जाता है जब मैकबेथ डंकन को कत्ल करने जाता है तो जैसे ही अंदर जाता है वो मैकबेथ को डंकन को देखता है तो वो कहता है नहीं, मैं इसको कत्ल नहीं कर सकता, उसके साथ मेरे दो ताल्लुकात हैं. वन, दैट ही इज माई किन. किन कहा जाता है रिश्तेदार को. सेकेंडली, ही इज माई गेस्ट. और गेस्ट को खुद कत्ल करना, आपने गेस्ट की क्या करनी होती है, हिफाजत करनी होती है, और आप अपने गेस्ट को खुद कत्ल कर रहे हैं. सो दैट इज वेरी बैड. अंदर जब जाता है तो उसको ये जब लगता है वो वापस आ जाता है डंकन को कत्ल किए बगैर. फिर उसकी बड़ी मशहूर लाइन है, ये टेस्ट में भी बहुत सारी दफा आ चुकी है. उसकी वाइफ उसको कहती है, योर हार्ट इज टू फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस. योर हार्ट is too full of milk of human kindness. Milk of human kindness. ये शेक्सपियर के हवाले से भी यूज की जाती है कि शेक्सपियर जो है वो ह्यूमनिस्ट था, कि वो इंसानियत का ख्याल करने वाला था. शेक्सपियर रिलीजन को सामने नहीं लाता, वो किसी को सेक्स की बेस पे, रिलीजन की बेस पे, कास्ट कलर की बेस पे सुपीरियर या इंफीरियर नहीं गिनता. और ये शेक्सपियर के लिए ये लाइन यूज की जाती है दैट शेक्सपियर इज टू फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस. के शेक्सपियर जो है उसके अंदर ह्यूमन काइंडनेस बहुत ज्यादा है. वो इन चीजों में नहीं पड़ता जो लोगों को डिवाइड करती हैं, लाइक रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसलिए आप मर्चेंट ऑफ वेनिस में अगर देखें तो आपको नजर आता है कि उस जमाने में जूज के लिए बात करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट. लेकिन उस वक्त शेक्सपियर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पीक्स इन फेवर ऑफ द जूज. शाइलाक की स्पीच है कि हैथ नॉट अ जू आईज, हैंड्स, ऑर्गन्स, डायमेंशंस. के जिस तरह क्रिश्चियंस के ऑर्गन्स हैं, हाथ हैं, पांव हैं, सर है, तो हमारे भी इस तरह हैं. हैथ नॉट अ जू आईज, हैंड्स, ऑर्गन, डायमेंशंस. इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड. कि अगर प्रिक का मतलब होता है किसी को सुई छबोना, कि अगर आपको सुई छबोई जाए आपका खून निकलता है क्या? यहूदी का खून नहीं निकलता. इफ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ. टिकल कहा जाता है गुदगुदी करने को. अगर आपको गुदगुदी की जाए, आप हंसते हैं, तो हमें की जाए तो हम भी हंसते हैं. इफ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई. अगर आप पॉइजन दे दें क्रिश्चियन को, वो भी मरता है. आप पॉइजन दे दें मुस्लिम को, जू को, वो भी मरता है. So if we are equal in this, we are equal in the rest. तो ये कहा जाता है शेक्सपियर की सबसे ह्यूमनिस्ट स्पीच यही है जिसमें वो ह्यूमैनिटी को पहले कंसिडर करता है और रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स को जो है वो बाद में लेके आता है. तो ये यहाँ पे शाइलाक ये बताता है that we can be different in religions but we are same इन ह्यूमैनिटी. जिस तरह आपके हाथ हैं, पांव हैं, आपको दर्द होता है, मुझे भी दर्द होता है. आपको खुशी फील होती है, मुझे भी फील होती है. एंड ही सेज वी आर वार्म्ड एंड कूल्ड बाय द सेम समर एंड विंटर. आपको जैसे समर में गर्मी लगती है जैसे मुझे लगी हुई है, इसी तरह विंटर में जैसे आपको सर्दी लगती है मुझे भी उसी तरह सर्दी लगती है. तो यहाँ पे शेक्सपियर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, दैट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट पीपल as Muslim, Jews, Hindus, Christians and so on and so forth, we need to think about the people as humans. कि human पहले आता है, बाकी चीजें बाद में आती हैं. तो जब यहाँ पे मैकबेथ जाता है in order to kill डंकन, तो वो उसकी वाइफ तो उसको कहती है कि तुमने तो उसको कत्ल नहीं किया, तुम ऐसे ही वापस आ गए हो.
and she says your heart is too full of milk of human kindness. ये शेक्सपियर के लिए मोस्टली यूज यस यू कैन से दैट. तो ये भी हो सकता है ना कि यू कैन say to your wife that I am not ready to do that. I am a general, I am a responsible person, and this is against my job, this is against the demands of a host. So it means, इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जो लेडी मैकबेथ है, शी इज द फोर्थ विच, कि वो भी विचेस की तरह ही वो विचेस प्रोफेसी करती हैं और ये विच उसके हाथ में डैगर्स दे के उसको कत्ल करवाने तक भेज देती है. सो उसके बाद जब पहली कत्ल मैकबेथ कर लेता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है. उसके बाद वही कत्ल जब वो करता है तो उसकी बीवी उस कत्ल के जो उसका इफेक्ट होता है माइंड के ऊपर, वो पागल हो जाती है. तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है समटाइम्स लेडी मैकबेथ को फेमिनिस्ट कहती हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी, कि मर्द जो था वो मशहूर है कि वो किलिंग करने में, खून खराबा करने में बड़ा मशहूर है. यहाँ पे मर्द जो है वो डरपोक है और औरत जो है वो बड़ी बहादुर है. तो जैसे जब मैकबेथ वापस आ जाता है डंकन को कत्ल किए बगैर, तो उसकी बीवी उसको कहती है कि तुम बुज़दिल हो, यू आर कावर्ड, और अगर मैं होती तो मेरे अगर झोली में एक बच्चा होता, मेरा अपना बच्चा होता, और वो मेरा दूध पी रहा होता, मैं अगर चाहती कि मैंने एक काम करना है तो मैं उसको पकड़ के दीवार पे मार देती, उसको कत्ल कर देती और मुझे दूसरा ख्याल ना आता. तो उसको वो क्या बताने की कोशिश कर रही होती है, दैट यू नीड टू बी क्रूअल. इसीलिए वो उसको कहती है लुक लाइक एन इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट. ये भी लिख ले, लुक लाइक एन इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट. लुक लाइक एन इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट. कि बाहर से आपको नजर आना चाहिए कि आप बड़े इनोसेंट हैं, आप बड़े खूबसूरत हैं, आप बड़े फ्रेजाइल हैं, आप फूल की तरह हैं, लेकिन अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर सांप की तरह जहर होना चाहिए कि आप दूसरों को डस लें और उनको समझ भी ना आए. ये आप पाकिस्तानी सोसाइटी पे बड़े अच्छी तरह अप्लाई कर सकते हैं. तो मैकबेथ फिर उसको जब कत्ल कर देता है उसके बाद तो वो अपने डैगर्स वहीं पे छोड़ देता है. फिर क्या होता है कि डैगर्स उठाने उसकी बीवी जाती है, फिर उसके हाथों पे जो है वो लग जाता है, खून लग जाता है. और ये भी बड़ी मशहूर उसकी कोटेशन है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. तो अब उसके हाथों से वो खून जा चुका होता है, वो धो चुकी होती है, लेकिन उसको हर वक्त यही लगता है कि डंकन का जो खून है उसकी खुशबू मेरे हाथों पे अब भी मौजूद है. इसीलिए वो कहती है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया. और ये भी ज़हन में रखें उस वक्त अरेबिया के परफ्यूम्स बहुत ज्यादा मशहूर थे, इसलिए वो कहती है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, सारी चीजें परफ्यूम्स वगैरह यहां से इंपोर्ट करके वहां भेजी जाती थी. सो ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. कि अब मेरे हाथों से जो डंकन के खून की खुशबू है वो अब नहीं जा सकती, इट विल रिमेन देयर. और वही चीज जो है आखिर में उसको सुइसाइड करने पे मजबूर कर देती है और वो अपने आप को कत्ल कर देती है. और यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि औरत जो है वो क्रूअल बनना तो चाहती है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में क्रूअल्टी नहीं है. कि उसने एक कत्ल तो अपने हस्बैंड से करवा लिया, लेकिन अब उससे वो बर्दाश्त नहीं होता. उसके बाद आप मैकबेथ को देखें तो मैकबेथ उसके बाद बैंकों को कत्ल करता है, उसके बच्चों को कत्ल करने की कोशिश करता है, मैकडफ को कत्ल करने की कोशिश करता है, उसकी बीवी बच्चों को कत्ल कर देता है, लेकिन मैकबेथ जो है वो रुकता नहीं है. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैकबेथ के दिल के अंदर खुद भी ये चीज मौजूद थी. अगर उसको बीवी ये करवा रही थी तो उसने सिर्फ डंकन को कत्ल करवाया, उसके बाद देयर इज अ सीरीज ऑफ मर्डर्स वो खुद कर रहा होता है और उसकी प्लानिंग भी खुद करता है और सारी चीजें वो खुद कर रहा होता है. तो आप ये कह सकते हैं it was Macbeth himself who is responsible, and it was his love of power that makes him to kill people. इसी तरह आप डॉक्टर फास्टस के अंदर देख सकते हैं कि डॉक्टर फास्टस किस लिए करना चाहता है. He says a sound magician is a
डेमी गॉड और माइटी गॉड। एक वर्जन में माइटी गॉड है, दूसरे वर्जन में डेमी गॉड है। इन अनदर एक्ट ही सेज दैट आई विल बी एबल टू फेच स्पिरिट्स ऑफ द पीपल, I will be able to fetch the spirits of the old emperors and they will be at my command। तो उसको क्या चाहिए होती है? पावर चाहिए होती है कि मैं जो लोग मर चुके हैं उनको वापस बुला के लाऊंगा, उनसे कम्युनिकेट करूंगा। और यहाँ पे फिर एक चीज जरूर देखें कि फास्टस जब चाहता है कि मैंने स्पिरिट्स को बुलाना है जो लोग मर चुके हैं, फिर भी वो उन लोगों के ज्यादातर नाम लेता है जो फिलोसफर्स थे। इसमें फिर आपको उसका लव ऑफ नॉलेज जो है वो वहां पे नजर आएगा। ठीक है, हेलन को कौन लेके आता है, ये चीज ध्यान में रखें। हेलन फास्टस खुद नहीं कहता को हेलन को लेके आए, कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि वो उससे कहता है कि मुझे जो है वो शादी करनी है। मेफिस्टोफेलिस, तो शादी के लफ्ज जैसे वो इस्तेमाल करता है तो मेफिस्टोफेलिस कहता है शादी तुमने नहीं करनी, मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। वो इसलिए क्रिटिक्स ये कहते हैं कि शादी जो है वो एक रिलीजियस काम है, और मेफिस्टोफेलिस का काम क्या था, उसने रिलीजियस कामों से फास्टस को दूर लेके जाना था। तो वो शादी की बजाय उसको कभी हेलन दिखा देता है, कभी क्या कर देता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे नजर, यस, अलेक्जेंडर द ग्रेट होता है, बहुत सारे और भी लोग उसमें मौजूद होते हैं जिससे वो। द नेक्स्ट थिंग इज यूफेमिज्म। यूफेमिज्म जो है हम इसको कहते हैं शुगर कोटेड वर्ड्स। सिंपली आप इसको इस तरह कह सकते हैं, शुगर कोटेड वर्ड्स। आप इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, दैट वी यूज पोलाइट एक्सप्रेशंस इंस्टेड ऑफ हार्श एंड बिटर एक्सप्रेशंस। इसको यूफेमिज्म कहा जाता है। एंड द पर्सन हु इज नोन फॉर दिस, इट इज जॉन लिले। इसकी मिसालें क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड यूज करते हैं मेड। मेड कहा जाता है घर में काम करने वाली नौकरानी को। आप उसको जब यूफेमिस्टिकली लेते हैं, आप लिखते हैं डोमेस्टिक इंजीनियर। ठीक है, तो अब आप किसी नौकरानी को कहें कि तुम इंजीनियर हो तो उसके लिए तो ये बड़ी बात होगी। इसी तरह फैट को कहा जाता है बिग बोन। ठीक है, तो ये एक क्वालिटी हो जाती है, आपकी हड्डियां बड़ी बड़ी हैं और मजबूत भी हैं। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल शेक्सपियर एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन यूज करता है यूफेमिस्टिकली कि it is a wonderful expression. He plowed her and she cropped. Plowed her means sexual activity, that they performed sex, and she cropped. Cropped means gave birth to a child. He plowed her and she cropped. इसी तरह बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं कि जिस तरह आप डिसेबल को कहते हैं स्पेशल पर्सन। ठीक है ना, डिसेबल जो होते हैं उनको स्पेशल पीपल या स्पेशल पर्सन। इवन आपने कभी शनाख्ती कार्ड देखा हो डिसेबल लोगों का, तो उसके ऊपर जो है बाकायदा से उनको स्पेशल पर्सन भी लिखा जाता है। और उनको कहीं पे भी, ये आपके आसपास कोई अगर लोग हों तो उनको ये ज़रूर बताएं कि जो स्पेशल पर्सन होते हैं उनको कहीं पे भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती। वो लाइन के बगैर जो है वो आ सकते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड शो करेंगे कि वी आर स्पेशल पर्सन। उसमें आप कि ये वो कोई लूड़ा भी हो सकता है, लंगड़ा भी हो सकता है, अंधा भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर is humanism, and in our last class I told you about humanism, that humanism simply means that you are free to decide, you are free to choose for yourself. उससे पहले क्या होता था कि religion was the authority in every sphere of life. People were bound to follow
the Pope and the religion and the clergy. But after the institution of English Church or the Church of England, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब लिटरेचर डेवलप हुआ तो ये हुआ कि इंडिविजुअल्स बिकेम फ्री टू चूज फॉर themselves एंड टू डिसाइड फॉर themselves. उसमें आप फिर डॉक्टर फास्टस को लेके आ सकते हैं. उसमें वो क्या करता है कि ही डिसाइड्स फॉर हिमसेल्फ. शेक्सपियर के प्लेस जो हैं लाइक रोमियो एंड जूलियट में आप देखें तो, या आपने मिडसमर नाइट्स ड्रीम किसी ने अगर पढ़ा हो, पढ़ा है आपने? एनीवन एल्स? अच्छा, समरी पढ़ी है. उसमें यह था कि गर्ल्स वर सपोज टू मैरी अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ देयर पेरेंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फादर. ये चीज आप मिडसमर नाइट्स ड्रीम में देखेंगे, ये चीज आप मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखेंगे, ये चीज आप ओथेलो में देखेंगे, एंड बाकी जो ड्रामाज हैं उसमें भी आपको ये चीज नजर आएगी. और रोमियो एंड जूलियट में, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल मिडसमर नाइट्स ड्रीम में एक कैरेक्टर है हर्मिया. Her father wants her to marry a person whose name is Demetrius. And she wants to marry Lysander. उसका बाप कहता है कि तुमने किससे शादी करनी है? Demetrius. And she wants to marry Lysander. तो फिर बाप बेटी के दरमियान जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसका बाप कंप्लेंट लेके आता है किंग के पास, गवर्नर के पास, कि मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती, हालांकि कानून के मुताबिक अ गर्ल शुड फॉलो हर फादर. तो उसको किंग कहता है इस लड़की को दैट यू मस्ट सी विद योर फादर्स आईज, यू मस्ट सी विद योर फादर्स आईज, कि तुम्हारी आंखें इस हवाले से, मैरिज के हवाले से बंद होनी चाहिए. यू मस्ट सी विद योर फादर्स आईज. और उसकी बड़ी मशहूर कोटेशन है, ये लिख लें. हर्मिया कहती है, ओ हेल, ओ हेल, टू चूज लव बाय अनदर्स साइट, टू चूज लव बाय अनदर्स साइट, कि करना मैंने लव है और मैं देखूं किसी और की नजर से, इट इज इम्पॉसिबल. टू चूज लव बाय अनदर साइड, व्हेन यू चूज लव बाय अनदर साइड इट बिकम्स हेल. योर लाइफ टर्न्स फ्रॉम हेवन टू हेल. एंड शी सेज आई विल लुक विद माय आईज, एंड द किंग सेज नो, यू आर सपोज्ड टू लुक विद योर फादर्स आईज. तो यहां पे आप क्या देखेंगे? दैट शी डिसाइड्स फॉर हरसेल्फ, शी चैलेंजेस दोज कल्चरल रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स. इसी तरह आप देखेंगे इसके अंदर रोमियो एंड जूलियट के अंदर, जूलियट वाज सपोज्ड टू मैरी हर कजन, शी वाज नॉट सपोज्ड टू मैरी रोमियो. तो उसके अंदर क्या होता है? जूलियट गोज अगेंस्ट दैट स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी, अगेंस्ट द सेइंग्स ऑफ हर फादर एंड मदर, और वो कहती है कि नहीं, मैं अपने दिल की मानूंगी. और फिर इवन उसको अपनी जान देनी पड़ जाती है, but still she goes and follows her heart rather than following the rules, regulations, norms. Same is the case with Othello. Yes, that I have told you that Desdemona जो है, and personally शेक्सपियर के 4 ड्रामाज को प्रॉब्लम ट्रेजेडीज कहा जाता है, डार्क ट्रेजेडीज कहा जाता है. ओथेलो, किंग लेयर, मैकबेथ, ये भी आ जाता है कभी कभार कि डार्क ट्रेजेडीज कौन सी हैं शेक्सपियर की. वो है किंग लेयर, ओथेलो, मैकबेथ एंड हैमलेट. ये 4 उसकी डार्क ट्रेजेडीज कहा जाती है. इनको किंग लेयर, ओथेलो, मैकबेथ एंड हैमलेट. और शेक्सपियर के कुछ प्लेज हैं जिनको प्रॉब्लम प्लेज कहा जाता है. ये भी सवाल कभी कभार आ जाता है कि किस ड्रामाटिस्ट के प्लेज को प्रॉब्लम प्लेज कहा जाता है और वो कौन कौन से हैं. तो जब हम शेक्सपियर में आएंगे तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्लेज कौन कौन से हैं. तो ओथेलो पर्सनली
if you ask me which one is the best, I would say Othello. और ओथेलो के ऊपर आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी इंडियन मूवी है ओमकारा. इट इज वंडरफुल मूवी दैट इज बेस्ड ऑन ओथेलो, ओमकारा. Personally, as an actor, I do not like Saif Ali Khan, but here in this movie, he acts excellently. Okay, मतलब, yes, he acts as the villain in this. असल प्ले ओथेलो है, उसको जो उन्होंने बनाया है ओमकारा है. एंड डेस्डेमोना का रोल करीना कपूर ने परफॉर्म किया. दैट इज एन एक्सीलेंट रोल एज वेल. इसी तरह मैकबेथ के ऊपर मूवी है मकबूल. दैट इज अगेन वेरी ब्रिलियंट मूवी बाय विशाल भारद्वाज. उसका नाम है, जो उसका डायरेक्टर है, विशाल भारद्वाज. ही इज एन एक्सीलेंट डायरेक्टर. उसकी मूवी है मैकबेथ के ऊपर मकबूल. और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जरूर देख लें आपने अगर मैकबेथ पढ़ा हुआ है. हैमलेट के ऊपर है हैदर. रोमियो एंड जूलियट के ऊपर मूवी है रामलीला. अगर आप लोगों ने किसी ने रामलीला देखी है तो वो रोमियो एंड जूलियट के ऊपर बनी हुई है रामलीला, जिसमें आप इसको देखेंगे दीपिका पाडुकोन एक्टिंग एज जूलियट. तो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं. ह्यूमनिज्म इन शेक्सपियर. इसी तरह बेकन के एसेज में आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है कि वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस करता है दैट यू नीड टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ. इसी तरह love of adventure and traveling. It was an age of adventure and travel. For example, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यू एरियाज डिस्कवर हो रहे थे, न्यू कॉलोनीज को डिस्कवर किया जा रहा था. और एडवेंचरस इस हवाले से भी थी कि एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है दैट हैपेंड इन 1588. In this time, Britain defeated Spanish Armada. इससे पहले समंदरों के ऊपर जो हुकूमत थी वो स्पेन की थी. As I told you in the last lecture that when Spain started colonization in America and other parts of the world, Spain became the richest country in Europe. और उनकी इसलिए वो बेकन कहता है कि आप सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने लिए गोल्ड और बाकी चीज़ें लेके आएं. जब गोल्ड आपके पास आएगा, आपकी इकॉनमी डेवलप होगी. आपकी इकॉनमी डेवलप होगी, आप और ज़्यादा जहाज़ बनाएंगे, और ज़्यादा आर्मी डेवलप करेंगे. जब और ज्यादा आर्मी डेवलप हो जाएगी, जहाज हो जाएंगे, तो फिर वो वहीं पे जाएंगे कॉलोनीज के अंदर और दौलत लेके आएंगे. तो वो कहता है एक साइकिल है, एक चक्कर है जो चलता रहता है. तो आप यहां पे देखेंगे स्पेन वाज अ नेवल फोर्स दैट कैन नॉट बी डिफीटेड. स्पेनिश आर्माडा बड़ा फेम. आर्माडा कहा जाता है कि जो जंगी जहाजों का एक ग्रुप होता है जो समंदर के अंदर लड़ते हैं, दैट इज नोन एज आर्माडा फ्लीट. यस, यू कैन से. तो एक जंग होती है 1588 में बिटवीन स्पेन एंड ब्रिटेन. और यह कहा जाता है कि स्पेन वुड इजीली डिफीट ब्रिटेन. लेकिन क्या होता है कि एलिजाबेथ कहती है, इस वक्त क्वीन एलिजाबेथ वहां की क्वीन होती है, शी सेज कि नहीं, हमने मुकाबला करना है. एंड द फाइट. और क्या होता है कि बहुत सारे दफा नेचर और लक भी आपका साथ देती है और बहुत सारे दफा नेचर और लक आपका साथ नहीं देती. तो इस जगह पे नेचर किसका साथ देती है? ब्रिटिश का साथ देती है. और वो स्पेन का साथ नहीं देती. एक समुद्री तूफान आता है जिसमें स्पेन के ज़्यादातर शिप्स जो हैं वो तबाह हो जाते हैं. जो बाकी बच जाते हैं उनको ब्रिटिश शिप्स जो हैं वो तबाह कर देते हैं. और पूरे यूरोप में उसके बाद
बरतानिया की हुक्मरानी हो जाती है, और इसीलिए आज तक बरतानिया को समंदरी जंग में कोई भी शिकस्त नहीं दे सका। ये चीज ध्यान में रखें। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी ने सारे मुल्कों को तबाह किया, इवन फ्रांस को तो कब्जा करके उसके बहुत सारे इलाकों को नुकसान भी दिया, लेकिन बरतानिया के ऊपर वो कब्जा नहीं कर सका, क्योंकि बरतानिया के साथ जो चैनल है, जो पानी का इलाका है, उसके ऊपर बरतानिया की नेवी जो थी वो बहुत ताकतवर थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनको शिकस्त नहीं दे सकते, और वो बरतानिया की जो मेन लैंड है उसके ऊपर कोई जंग नहीं होती। इसी तरह आप सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर देखेंगे कि हिटलर सारे इलाकों को यूरोप के फतह कर लेता है, वो बरतानिया को फतह नहीं कर सकता, और उसकी वजह क्या होती है? वो ब्रिटिश नेवी होती है। तो 1588 के बाद बरतानिया की नेवी यूरोप के अंदर और आसपास के समुद्रों के अंदर सबसे पावरफुल नेवी बन जाती है, जिसको कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता, और इवन आज तक वन ऑफ द पावरफुल नेवीज कंसिडर किया जाता है बरतानिया की नेवी को। वैसे जी, सो 1588 में बरतानिया जो है वो एक पावर इमर्ज होती है, और उसके बाद बरतानिया का राइज होता है, और बरतानिया सबसे इम्पोर्टेंट पावर बन जाते हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, फिर उसके बाद RAC बनती है, जो अफ्रीका के ऊपर कॉलोनाइजेशन करते हैं। इस तरह बाकी कंपनीज बनती हैं जो बाकी दुनिया के ऊपर फिर ये अपनी हुकूमत करते हैं। तो उस वक़्त एडवेंचर की वो भी बहुत ज़्यादा थी लोगों के अंदर, और ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट भी मौजूद था वो डिस्कवरीज की वजह से। तो ये चीज़ें भी आप लिटरेचर में देखते हैं। अनदर थिंग इज place of women in the society. If you look at the tragedies, you will not find strong female characters. Like आप इसके plays को देखें, फास्टस के plays को, उसमें आपको कहीं पे कोई strong female character नहीं मिलती। Like आपने मार्लो के plays में देखें, फास्टस के plays में नहीं। डॉक्टर फास्टस को अगर देखें, do you find any strong female character? एक हेलेन आती है, वो भी चुपचाप बैठी होती है। इसलिए आई वॉज रीडिंग डिडो द क्वीन ऑफ कॉर्थेज में कुछ है, लेकिन शी इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। उसमें भी आप देखेंगे कि वर्जल भी यही लिखता है कि जो एनियस होता है उसको ऑप्शन होते हैं कि दो लड़कियों से वो शादी कर सकता है। तो उसमें एक लड़की जो होती है वो बड़ी कॉन्फिडेंट होती है, और वो बोल सकती है और सेल्फ सफिशिएंट होती है, और दूसरी जो है वो थ्रू आउट द एपिक वो खामोश रहती है। तो एनियस जो है वो उस बोलने वाली लड़की से शादी करने के बजाय वो चुपचाप लड़की से शादी कर लेता है। और किस लिए? इट इज सेड कि अ थिंकिंग वुमन इज अ डेंजरस वाइफ, अ थिंकिंग वुमन is a dangerous wife. An educated woman is a dangerous wife because she speaks for her rights, she knows her rights and she demands her rights. So that is why एनियस कहता है कि ये लड़की जो चुपचाप बैठी है बस यही ठीक है, जो बोलने वाली है तो ये तो मेरी जिंदगी जो है ख्वार कर देगी, तो इससे अच्छा है कि मुझे इस चुपचाप से शादी कर लेनी चाहिए, मारो पीटो जो भी करो, जहां ले जाओ, she will not complain. So place of women in the Renaissance society, वो आप देखेंगे कि शेक्सपियर के ड्रामाज में ज़्यादातर आप अगर ट्रेजेडीज देखें तो आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स वहाँ पे भी ज़्यादातर नज़र नहीं आती, सिवाय लेडी मैकबेथ के, लेकिन वो भी फिर आखिर में जाके बड़ी वीक हो जाती है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, एंड देन शी किल्स हरसेल्फ। लेकिन अगर आप शेक्सपियर की कॉमेडीज देखें, इसीलिए आई थिंक स्विनबर्न सेज that Shakespeare has only heroines and no heroes. Yes, Ruskin rather than Swinburne. Sorry. So उसमें अगर आप देखें, you would find Portia, very strong female character. कि Portia is head and shoulders above two men. दो मर्दों से वो जो है वो ज्यादा अक्लमंद है, इंटेलिजेंट है, कि जब एंटोनियो को अपना पाउंड ऑफ फ्लैश काट के देना होता है, एंटोनियो भी रो रहा होता है, बेसानियो भी रो रहा होता है, और इस वक्त सबसे रैशनल काम कौन करती है? वो पोर्शिया करती है। आप सब लोगों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस तो पढ़ा ही होगा ना? यस। सो शी पोर्शिया इज अ रैशनल कैरेक्टर
इसी तरह आप एज यू लाइक इट में देख लें, सीलिया को देख लें, रोजालिंड को देख लें। इसी तरह आप उसकी बाकी कॉमेडीज में हर्मिया को देख लें, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। इसी तरह 12th नाइट में वियोला को देख लें, शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मेजर फॉर मेजर में देखें, आई फॉरगॉट हर नेम, व्हेन शी स्पीक्स फॉर हर ब्रदर, वो अपने भाई के लिए माफी मांगती है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर। वो दो स्पीचेस बड़ी मशहूर हैं मर्सी के हवाले से शेक्सपियर की, और वो दोनों औरतों की हैं। एक मेजर फॉर मेजर से है, एक मर्चेंट ऑफ वेनिस से है। मर्चेंट ऑफ वेनिस से आई होप आपको याद होगा, पोर्शिया तकरीर करती है, वो शाइला को कहती है कि थोड़ी सी मर्सी दिखाओ, रहम करो, इससे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ना काटो। ये भी कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन में कि पोर्शिया की स्पीच किस चीज पे होती है, वो मर्सी पे होती है। एंड शी सेज दैट क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट कंस्ट्रेन्ड, इट डायरेक्टली ड्रॉपeth फ्रॉम द हेवन एंड इट ब्लेसेड द बोथ द गिवर एंड द गिवन। कि मर्सी की क्वालिटी जो है, इट इज नॉट कंस्ट्रेन्ड, वो छोटी नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है। इट ब्लेसेस द बोथ, दोनों को ब्लेसिंग देती है, द गिवर एंड द गिवेथ, जो देने वाला होता है उसको भी ब्लेसिंग मिलती है और जिसको दी जाती है उसको भी ब्लेसिंग मिलती है। तो ये पोर्शिया की स्पीच जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप इस हवाले से देख सकते हैं। इसीलिए आप ट्रेजेडीज की जब बात करेंगे, मोस्टली चाहे वो मार्लो की ट्रेजेडीज हैं या वो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हैं, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स इतने ज्यादा मौजूद नहीं है, लेकिन शेक्सपियर की कॉमेडीज में आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स मिलती हैं। Revenge tragedy is another important feature of Renaissance. Revenge tragedy का मतलब है कि जब किसी एक बंदे को कत्ल किया जाता है तो फिर उसके बदले लेने का जो अमल होता है, उसके ऊपर जो प्ले होता है, दैट इज नोन एज रिवेंज ट्रेजेडी। और शेक्सपियर की मशहूर रिवेंज ट्रेजेडी जो है वो इट इज हैमलेट। That in the beginning of the play we come to know that Hamlet's father is killed, and throughout the play Hamlet tries to take revenge of his father's murder. तो ये revenge tragedy इसको कहा जाता है, and we will discuss other things in and yes, the last thing, supernatural elements. These are mostly found in Shakespeare. सबसे ज्यादा सुपरनेचुरल एलिमेंट्स आपको मिलते हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, जिसमें जिन भी हैं, परियां भी हैं। इसी तरह आपको सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जूलियस सीजर में भी नजर आते हैं। शेक्सपियर की बाकी प्लेज में भी आपको ये चीजें नजर आती हैं। तो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जो हैं, इट इज यस विचेस। और ये चीज ध्यान में रखें कि रेनेसांस को फर्स्ट रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। फर्स्ट रोमांटिसिज्म, और जो रोमांटिसिज्म है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उसको रेनेसांस ऑफ वंडर भी कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखें, जो रेनेसांस है उसको फर्स्ट रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है, और जो रोमांटिसिज्म है उसको रेनेसांस ऑफ वंडर भी कहा जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड है। रोमांटिसिज्म हम आगे पढ़ेंगे, दैट स्टार्टेड इन 1798 एंड एंडेड इन 1830 or 1850 विद द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ।